In the last class, we have discussed all the concepts of pH, okay, or you can say acid and base, like Lewis acid, Bronsted-Lowry, and Arrhenius concept. Today we are going to take further topics. So before I start with the Pearson concept, okay, so it is better to take some questions. Okay, sometime there is a statement usually asked in the entrance examination, okay, and they will ask you which statement is right. Okay, I mean how many statements are wrong. They can also ask in indirect way. So suppose if a statement is there and that statement is saying all Lewis acids are Bronsted base, but all Bronsted acids may not be Lewis acid. So it will be given you in the examination. So people get usually confused like this statement is right or wrong. Okay, so of course, so what I just said, all Lewis bases, all Lewis base are Bronsted base. Bronsted base. It means I am using two concepts here, Lewis concept and Bronsted-Lowry concept. Okay, but all Bronsted acid, all Bronsted acid may not be, may not be Lewis acid. So what does it mean? So its simple meaning is Lewis base is what? So Lewis bases are Bronsted base here. Why? Because the substance which can donate or which can lose electron pair, so it can also accept H plus ion. Of course. See, here if I talk about the NH3 plus, I mean NH3 only, not plus. So of course it can donate the electron pair. So if it can donate the electron pair, it means it is a Lewis base, because I told you Lewis base usually donates the electron. So it has a property of Lewis base, fine. And what is Bronsted base? Bronsted base means which can gain the H plus ion. So this can accept H plus ion. Okay. So now it becomes the Bronsted base. So that's why it is going to combine and it is going to form NH4 plus. Okay. So it means both the condition are satisfying here, right? Lewis base, it can donate its lone pair. Bronsted base, it is accepting the H plus ion. So both the things are happening here. But if I talk about all Bronsted acid, so they may not behave as a Lewis acid. Why? Because the substance which can release H plus ion, so it may not accept the electron, isn't it? So may we can say. So that's why I can say all, तो जितने भी मेरे पास ब्रोंस्टेड एसिड हैं, ठीक है, तो वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. सो ब्रोंस्टेड एसिड आर नॉट लुइस एसिड, मोस्ट प्रोबेबली हम बोल सकते हैं. या सॉरी फॉर दैट. एसिड आर नॉट लुइस एसिड बिकॉज विच इज रिलीजिंग द एच प्लस आयन, जो खुद एच प्लस आयन लूज कर रहा है, वो क्या मतलब वो क्यों क्यों मतलब मे नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, सिंपल. सो बिकॉज वो सब्सटेंस, यस, which can release H plus आयन. भाई एसिड क्या होगा? एसिड होगा जो H प्लस आयन को रिलीज करे. और लुइस एसिड क्या होगा? लुइस एसिड जो एक्सेप्ट करे. तो जरूरी थोड़ी है कि वो एक्सेप्ट करे, नहीं करेगा वो एक्सेप्ट. तो ऐसा बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि वो एक्सेप्ट करेगा ही करेगा. सो मे नॉट एक्सेप्ट, दैट्स व्हाई यहाँ पे एक पर्टिकुलर गारंटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, दैट्स व्हाई. ओके, जैसे कि मान लो मैं आपसे बोलता हूँ मेरे पास HCl है, राइट? तो HCl है तो HCl आगे H प्लस आयन देता है, बिल्कुल H प्लस आयन उसने दे दिए, देखो, और ये Cl माइनस बन गया. अब ये Cl माइनस आयन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा क्या? ये ऑलरेडी Cl माइनस आयन है. तो जब ये ऑलरेडी Cl माइनस आयन है, तो अब वो क्यों एक्सेप्ट करेगा भाई? बिल्कुल नहीं करेगा. ठीक है.
तो इसीलिए HCl हो गया मेरे पास, H2SO4 हो गया जो ऑलरेडी H प्लस आयन निकाल रहा है। फिर जब वो SO4 माइनस हो जाएगा तो वो क्यों और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा? तो बिल्कुल नहीं करेगा। ओके, तो इस टाइप की चीजें भी हमारे पास आती हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास ठीक है, ये तो हमारे पास एक सिंपल सी चीज हो गई। ठीक है, अब ना हमारे पास कुछ एक डाइल्यूशन लॉ आया था, ठीक है, जिसका नाम था मेरे पास ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। और ये ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ हमने आई गेस मतलब 11th क्लास का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये, और ये आगे जाके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज होता है। तो ये ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या है? तो यहाँ तक हमारा पास वाला कॉन्सेप्ट तो खत्म होता है, पूरा का पूरा एसिड और बेस वाला। ठीक है, यहीं पर ही वैसे तो एक साइंटिस्ट भी था, जैसे मैंने भी बात करी, एक पियर्सन कॉन्सेप्ट भी था। तो पियर्सन कॉन्सेप्ट ने भी हमें एसिड और बेस के बारे में बताया। तो इन्होंने हमें बताया कि कुछ एसिड्स को हम हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड भी बोलते हैं, और कुछ को हम हार्ड बेस और सॉफ्ट बेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बेसिकली क्या बोला, जैसे हमारे पास एक ट्रांजिशन सीरीज होती है, ठीक है, तो ट्रांजिशन सीरीज का मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जो कि हम 12th में पढ़ते हैं। तो इन्होंने ये सिंपल सी बात बोली कि अगर मेरे पास कोई भी एक मेटल आयन है, और अगर वो मान लो स्मॉल साइज का है, तो अगर वो स्मॉल साइज का है एंड वो लेस पोलराइजेबल है, मतलब वो ज्यादा प्लस नेगेटिव नहीं कर पाता है, ठीक है, कम प्लस नेगेटिव हो पाता है, मतलब कोई उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींचना या देने की बात आती है, तो वो लेस पोलराइजेबल होता है। ठीक है, तो वो हमेशा किसके साथ कंबाइन होगा? तो इट विल ऑलवेज कंबाइन विद स्मॉल एंड लेस पोलर लिगेंड्स। ओके, तो ये ऐसा बोला जाता है, मतलब सिंपल सी बात है, अगर एक मेटल आयन है जिसका खुद क्या है, अपने आप में स्मॉल साइज है, और जो कि लेस पोलराइजेबल है, ठीक है, तो इट ऑलवेज कंबाइन विद लेस पोलराइजेबल लिगेंड। जो खुद पोलराइजेबल था, तो वो दूसरे के साथ भी लेस स्मॉल और लेस पोलर वाली चीज के साथ कंबाइन करेगा। इसको मैं एग्जांपल के साथ लेता हूँ। जैसे मान लो एक एक कोई लड़का है, ठीक है, देयर इज अ बॉय। तो वो बॉय थोड़ा सा शांत रहता है। तो अगर वो थोड़ा सा शांत रहता है, एकदम सीरियस रहता है, ठीक है, एकदम फोकस्ड है अपनी मान लो IAS की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, बहुत फोकस्ड है। तो ऑफ कोर्स अगर वो आगे जाके उसकी मैरिज का प्लान बन रहा है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए उसको किस टाइप की गर्ल्स यूजुअली वो चाहेगा उसकी लाइफ में? ऑफ कोर्स तो वो भी चाहेगा कि एक ऐसी पीसफुल टाइप की और शांत स्वभाव की टाइप की लड़की आनी चाहिए। एम आई राइट? ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो इसी टाइप का एक एसिड और बेस का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ऐसे मेटल, कुछ मेटल आयंस होते हैं, ठीक है, तो इन्हीं जो इसी टाइप के जो मेटल्स आयन है, जो कि साइज में छोटे होते हैं और लेस पोलराइजेबल होते हैं, ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं हार्ड एसिड्स। हार्ड एसिड्स, और उनके साथ जो लिगेंड्स अटैच रहते हैं उनको हम बोलते हैं हार्ड बेसिस। ठीक है, ऐसी मेरे पास एक उसी के बाद एक और आया कि कुछ मेटल साइंस साइज में बड़े होते हैं और वो ज्यादा पोलराइजेबल होते हैं, तो वो किसके साथ कंबाइन करेंगे? तो वो कंबाइन करेंगे लार्ज और मोर पोलराइजेबल लिगेंड के साथ। ठीक है, देखो आने वाले टाइम में मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा, तो उसमें मेरे पास क्या होता है, एक मेटल होता है और एक लिगेंड्स होते हैं। जैसे मैंने बोला, मान लो प्लेटिनम और Cl6, तो Pt तो एक तरह से मेटल है, और Cl6 तो ये क्या है मेरे पास, लिगेंड। तो मेटल से हमेशा कौन अटैच होते हैं? लिगेंड्स अटैच होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो अगर कोई साइज में छोटा है और लेस पोलराइजेबल है, ठीक है, तो फिर वो क्या होगा मेरे पास, मतलब देखा जाए, जैसे मैंने बोला हार्ड एसिड और उसके लिगेंड होते हैं हार्ड बेस। और अगर कोई मेटल आयन साइज में बड़ा है, मोर पोलराइजेबल है, और अगर वो कंबाइन कर रहा है तो वो भी अपने जैसे कंबाइन, मान लो एक लड़का बहुत बोलता है, तो ऑफ कोर्स वो कैसी लड़की पसंद आएंगी यूजुअली, जो ज्यादा बोलती हो। ठीक है, या मान लो तो कोई एक बच्चा है, वो बहुत बोलता है, तो वो कैसे फ्रेंड्स बनाएगा? जो फ्रेंड्स सारे ज्यादा बोलते हो। कम फ्रेंड बोलने से एक ही बोलता रहेगा तो कोई फ्रेंडशिप तो हो नहीं पाएगी। तो अगर एक मेटल आयन भी बड़ा है साइज में और वो पोलराइजेबल भी ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स वो कौन से लिगेंड के साथ कंबाइन करेगा? जो भी बिल्कुल उसी के जैसे हो। तो इस टाइप के जो मेटल होते हैं वो क्या बनाएंगे, सॉफ्ट एसिड, और उस टाइप के लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट बेसिस। ओके, तो ये, तो मैंने अभी किस चीज के बारे में बात करी है, तो कोई भी मेरे पास कंपाउंड बनेगा, ठीक है, तो उसमें मेरे पास क्या होते हैं, लिगेंड्स और मेटल। तो मेटल, जैसे मान लो मैंने कंपाउंड बोला, मैंने आपको बोला कि मेरे पास कोई भी कंपाउंड है, मान लो ये मेरे पास है सोडियम, और इसके लास्ट में मान लो मैं आपसे इस तरीके से कोई भी एक हाइपोथेटिकल अगर मैं मान लो ले लेता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे आ गया मान लो Cl।
ठीक है। तो अभी तो ये मान लो ये मेरे पास क्या माना जाएगा, मेटल, और ये मेरे पास माना जाएगा लिगेंड। ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लो मैंने आपसे बोला कि मेरे पास है एक इस तरीके से स्कैंडियम, ठीक है, ये स्कैंडियम है मेरे पास, और यहाँ पे मैंने आपसे बोला कि यह है मेरे पास Cl3, तो ये स्कैंडियम क्या माना जाएगा मेरे पास, मेटल, और ये जो Cl3 है ये मेरे पास क्या माना जाएगा, लिगेंड्स। तो ये इस तरीके से लिगेंड्स आपस में क्या करते हैं, उनको अटैच करके रखते हैं। तो अब मेरे पास ये जो कॉन्सेप्ट आ रहा है नया, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हॉर्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पियर्सन कॉन्सेप्ट। तो ये पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ, तो यहाँ पे हमने किस चीज के बारे में बात करी थी, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड और बेस के बारे में। सो इट इज पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट, ठीक है। तो बेसिकली वो किस चीज के बारे में, एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। तो देखो अब हम एसिड और बेस की बात करते हैं, तो जैसा कि मैंने एक एग्जांपल लेके समझाया कि अगर कोई एक पर्सन है, ठीक है, तो अगर कोई भी एक मेरे पास मेटल है, ठीक है, तो अगर कोई मेरा मेटल है, मैंने उसे क्या प्रॉपर्टी बताई, एक तो उसका स्मॉल साइज होना चाहिए, ठीक है, और उसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, आई टोल्ड लेस पोलराइजेबिलिटी, ठीक है ना। जैसे देखा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो अगर ज्यादा खींच लेगा तो वो ज्यादा पोलराइजेबल हो गया, और अगर वो कम खींच पाएगा तो वो क्या हो गया। जैसे कुछ लोग होते हैं वो हर किसी एकदम, कुछ लोग होते हैं ना एकदम डोमिनेट करते हैं, तो उनसे कोई ज्यादा इंटरेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होते हैं, ठीक है, तो वो उनसे ज्यादा लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब तो ये मेटल किस टाइप के लिगेंड के साथ अट्रैक्ट करेगा, ये मेटल किस टाइप के लिगेंड के साथ अट्रैक्ट होना चाहेगा, ऑफ कोर्स सेम सेम या डिफरेंट, मतलब अगर ये खुद स्मॉल साइज है, खुद पोलराइजेबल है, तो ये कौन से लिगेंड के साथ अटैच होगा, ऑफ कोर्स जो खुद भी क्या हो, स्मॉल हो, और जो दूसरा भी क्या हो, मतलब वो भी क्या हो, लेस पोलराइजेबल हो, ठीक है, लेस पोलराइजेबल। तो इसका मतलब तो ऐसे मेटल को फिर हम क्या बोलेंगे, तो इस टाइप के मेटल को जो होते हैं वो क्या बनाए जाएंगे, तो वो बनाएंगे हार्ड एसिड, और इस टाइप का जो लिगेंड होगा वो क्या माना जाएगा, तो इस टाइप का जो मेरे पास लिगेंड होगा उनको हम क्या बोल सकते हैं, उनको हम बोलते हैं हार्ड बेसिस, ठीक है, हार्ड बेसिस, सिंपल है। तो अब देखो ये स्मॉल साइज तो इसका एग्जाम्पल भी आ जाता है, तो हार्ड एसिड जैसे कि, जैसे मेरे पास ये Li+ है, जैसे मेरे पास सोडियम प्लस है, ठीक है, जैसे कि मेरे पास पोटेशियम प्लस है, मैग्नीशियम भी छोटा ही होता है Mg2+, जैसे मेरे पास कैल्शियम 2+, तो ये क्या है, ये मेरे पास है मेटल, सब सब हो ही जानता है, तो ये क्या माने जाएंगे, हार्ड एसिड। अब अगर मैं हार्ड बेसिस की बात करता हूँ, तो हार्ड बेसिस कौन से माने जाएंगे, तो जो लिगेंड्स के रूप में आते हैं, जो अट्रैक्ट करते होंगे, राइट, तो लेकिन वो भी स्मॉल साइज के होने चाहिए, जैसे कि F-, जैसे कि Cl-, जैसे कि सल्फेट SO4 2-, जैसे कि CO3 2-, राइट, OH-, तो ये सब क्या है मेरे पास, तो ये सब है मेरे पास हार्ड एसिड एंड हार्ड बेस। तो ये था मेरे पास पियर्सन कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, मान लो अब अगर मेरे पास उल्टा हो जाए, अब अगर वो स्मॉल के ना हो, अब अगर वो मेरे पास उल्टा हो जाएगा तो मान लो अगर मेरे पास एक मेटल आयन है, अब अगर मेरे पास कोई एक मेटल आयन है और जो खुद भी क्या है, एक तो लार्ज साइज का है, मतलब वो लार्ज आयन है, ठीक है, और वो मोर पोलराइजेबल है, तो एक तो वो लार्ज आयन, ऊपर से वो मोर पोलराइजेबल हो जाएगा, तो ऑफ कोर्स उसको किस टाइप का लिगेंड चाहिए होगा, तो ऑफ कोर्स उसके लिए जो लिगेंड होगा वो भी क्या होगा, सेम वैसे ही होना चाहिए, तो जो लिगेंड आएगा वो भी मेरे पास क्या होगा, लार्ज साइज, मेरे को यहाँ पे साइज लिखना चाहिए था, और वो भी क्या होगा, मोर पोलराइजेबल होगा। तो अगर इस टाइप की कंडीशन होगी तो इस टाइप के मेटल को हमें क्या बोलना चाहिए, ऑफ कोर्स उसका जो अपोजिट, राइट, तो इस टाइप का जो हो जाएगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा, सॉफ्ट एसिड, ओके। तो इस टाइप के जो मेटल्स आयंस होते हैं दे आर कॉल्ड एज सॉफ्ट एसिड, एंड लिगेंड्स आर कॉल्ड एज सॉफ्ट बेसिस। देखो बिल्कुल अपोजिट सा हो गया, मतलब जो बड़ा है, मोर पोलराइजेबल है, तो वो सॉफ्ट कहा जा रहा है,
और जो छोटा है और जो कम पोलराइजेबल है उसको हम हार्ड बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा सॉफ्ट एसिड्स का, जो काफी बड़े होने चाहिए, जैसे कि मान लो PD2+, Platinum 2+, ये काफी बड़े होते हैं साइज में, ठीक है। Copper 2+, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड, आई मीन सिल्वर प्लस भी ले सकते हैं। और सॉफ्ट बेसिस क्या हो जाएंगे मेरे पास, जैसे H-, Cl-, ठीक है, और SCN-। तो ये सब क्या होता है मेरे पास, वैसे H- थोड़ा कम होता है, Cn- बोलना चाहिए क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा Cn- बेटर टू से, ठीक है। तो ये है मेरे पास सॉफ्ट बेसिस। तो ये था हमारे पास पियर्सन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये मेटल्स यहाँ पे हार्ड एसिड की तरह कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें मेरे पास पियर्सन कॉन्सेप्ट में आते हैं और ये हमें कुछ याद रखना है बस, ठीक है। बहुत सिंपल था, लिगेंड्स एक तरह से बेसिस की तरह है और जो मेटल है वो एक तरह से एसिड की तरह है, सिंपल। आई होप इट इज क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू our topic, Oswald dilution law, which is also quite important. तो ऑसवर्ल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, तो अब ये ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ अपने आप में क्या कहता है, देखो। अब कोई भी अगर स्ट्रांग होता है, ओके, तो अगर कोई भी बंदा एक स्ट्रांग पर्सन है, तो ऑफ कोर्स अगर मैं स्ट्रांग की बात करता हूँ तो वो तो रिजल्ट देता ही है। आई मीन मान लो अगर कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है तो ऑफ कोर्स वो रिजल्ट देगा ही देगा, उसमें तो किसी कोई डाउट ही नहीं है, तो उसका रिजल्ट आएगा ही। और अगर मैं ऐसी बात करता हूँ, मान लो कि अगर कोई वीक बच्चा है तो वो रिजल्ट हमें नहीं देता है, उसका रिजल्ट ऐसी 40 50 में आ जाएगा, तो वो हमें मतलब उसको बेसिकली वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ, मान लो कोई रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कितना बना, तो वो स्ट्रॉन्ग तो पूरा पूरा बन जाएगा, तभी तो उसे स्ट्रॉन्ग भी कहा जा रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो पूरा पूरा बना देगा। लेकिन जो वीक वाला है, वीक वाले पे हमें डाउट है कि वीक वाला पूरा पूरा रिजल्ट हमें देगा या नहीं देगा, तो वीक वाले के अंदर हमें थोड़ा सा डाउट है। तो इसीलिए अब उस वीक वाले को देखते हुए ना हमारे पास क्या आता है, तो ये जो वीक वाले होते हैं, तो वीक वाला हमारे पास एक्चुअली में 100% प्रोडक्ट हमें नहीं देता है। तो जब वीक वाला हमें 100% प्रोडक्ट नहीं देगा तो कुछ ना कुछ तो देगा फिर। तो अब इसका जो मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में बताया भी था, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कोर्स क्या होगा, हमारे पास कम होता है, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं देता है, कम देता है। तो इसीलिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो अब हम तो वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर होता है तो वो 100% प्रोडक्ट आपको नहीं देगा। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम बात करना चाह रहे हैं। मान लो अगर मेरे पास है CH3COOH और हमने इसके अंदर वाटर डाला, तो अगर CH3COH के अंदर हमने वाटर डाला तो ये इट वुड बी इन इक्विलिब्रियम। ये मुझे क्या देगा, CH3CO- और ये मुझे देगा H3O+। तो हाइड्रोलिसिस जो होता है वो एसिडिक एसिड का इसी तरीके से होता है और एसिडिक एसिड वीक होता है, इथेनॉइक एसिड भी बोलते हैं इसे, वेरी सिंपल, ठीक है। अब अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करता हूँ, तो अगर अब मैं इक्विलिब्रियम की बात करूंगा तो ऑफ कोर्स वो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। तो हम वो कर देंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। और H2O जो होता है उसको तो हम 1 लेके चलते हैं, ठीक है, तो सिंपल है, ठीक है। और नहीं तो H2O कांस्टेंट है तो उसको जब हम K वहां पे ले जाते हैं तो वो बन जाता है मेरे पास मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं उसे, डिसोसिएशन कांस्टेंट भी वो बन जाता है अगर नीचे जो H2O आएगा अगर मैं उसको इस साइड ले गया तो अभी के लिए मान लो मुझे अभी सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है K, तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट और सबके पावर तो 1 है ही है, तो ये हो जाएगा CH3COO-H3O+। ये ब्रैकेट जो होता है इसका मीनिंग होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये जो हम ब्रैकेट लगा रहे हैं इसका मीनिंग होता है वी आर कंसिडरिंग कॉन्सेंट्रेशन। ये है मेरे पास CH3COOH एंड ये मेरे पास H2O, ओके। तो ये H2O 1 होता है, यू नो दैट, ठीक है, यू कैन ऑल्सो टेक एज 1। तो ये जो हमने करा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये मेरे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मुझे बनाना हो आयनाइजेशन कांस्टेंट, आयनाइजेशन का मतलब अपने आप में होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, सो वी हैव टू टेक दिस H2O टू दी लेफ्ट साइड। तो ये H2 मेरा जब इधर की साइड आ जाएगा, ठीक है,
तो वैसे तो वी नो दैट द H2 जो होता है वो कांस्टेंट होता है, आई नो। तो ये K मेरे पास जब इधर आ जाएगा, H2 को मैं इधर लेकर आ गया, तो अभी मेरा क्या बन जाएगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो H2 भी अपने आप में कांस्टेंट रहता है, तो सिर्फ, तो यही अब मेरा पास किसके बराबर हो जाएगा, H2 के बराबर। ठीक है, तो अब मैं मतलब K इंटू H2, और ये मेरे पास हो जाएगा CO माइनस H3O प्लस डिवाइडेड बाय CH3COH। तो ये मेरे पास आ गया है फाइनल K इंटू H2 इज इक्वल टू, H2 को मैं उधर ले गया हूँ, ठीक है, सिंपल बस। अब ये इस K इंटू H2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इज इक्वल टू KA। KA मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, so this is called dissociation constant। तो ये मेरा कहलाता है अपने आप में एक dissociation constant which is equal to Ka। ओके, ओके फाइन। नाउ अब जैसे कि मैंने बताया, चूंकि ये मेरे पास वीक एसिड था, जैसे ये वाली जो मैंने इक्वेशन लिखी है रिएक्शन की, तो एज इट वाज वीक एसिड, तो अगर मैं इसे लिखूंगा तो ऑफ कोर्स इसका जो डिसोसिएशन होगा वो क्या होगा, बहुत वीक होने वाला है। लेट्स राइट दिस रिएक्शन वंस अगेन। तो if I write this reaction, तो मेरे पास क्या होगा, देखो इनिशियली H2 को तो भूल जाओ क्योंकि ये तो कांस्टेंट है अपने आप में, तो इसका मतलब इनिशियली तो ये अपने आप में 100% रहा होगा। इफ आई राइट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो ये अपने आप में 1 रहा होगा, तो ये मेरे पास क्या रहा होगा, अभी 0, क्योंकि अभी प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है इनिशियली। अब फाइनल की जब मैं बात करूंगा, तो फाइनल में से अब पूरा 100% तो बना नहीं है ये, तो कॉन्सेंट्रेशन जो आने वाली है फाइनल एट इक्विलिब्रियम, तो 1 में से वो कुछ ना कुछ इससे गया होगा। तो जब वो 1 में से कुछ ना कुछ इससे गया होगा, तो उसी में क्या बोलूंगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलूंगा, राइट। तो ये मेरे पास 1 में से कुछ हिस्सा इधर चला गया, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा। तो 100% में से कुछ चला गया इधर की साइड। तो जब ऊपर 1 में से ये दो बन रहे हैं, CH3CO माइनस H3O प्लस, तो इसी तरीके से जब यहाँ से अल्फा गया तो यहाँ पर भी तो दोनों अल्फा ही बनेंगे। जब ऊपर एक में से एक एक बन गया, तो अब जो यहाँ से अल्फा गया तो वहां से भी अल्फा अल्फा बनेगा। ठीक है, तो ये तो हमने एक स्टैंडर्ड मान के कर लिया, लेकिन हमने कोई ना कोई पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन तो ली होगी, राइट। तो इसलिए वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाइड बाय सी। हमने कोई ना कोई तो पर्टिकुलर किसी ने कुछ कॉन्सेंट्रेशन ली होगी, किसी ने कुछ, तो उसको हमने सी से पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन अभी तो हमने 1 मान के किया था, दैट्स वाई। ओके, तो अब अगर मैं अपना यहाँ पे देखूंगा, तो अब अगर मुझे निकालना होगा यहाँ पर, ठीक है, तो अब मेरे पास क्या आ जाना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे अपना आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालूंगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू, तो मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखता हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो अभी देखो, अब ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, CH3CO माइनस की, देखो ऊपर क्या आया था, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है ये, तो अब बस मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ। तो अब मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर इनकी रियल कॉन्सेंट्रेशन पुट करूंगा, ये C अल्फा, तो लेट्स राइट दैट। तो देखो ऊपर क्या है मेरे पास, ऑफ कोर्स देखो CH3CO माइनस और ये है H3O प्लस, तो अब इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट करो, तो C अल्फा इंटू में C अल्फा, और डिवाइड में क्या था, ये था CH3COOH, तो इसकी फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है इक्विलिब्रियम, C1 माइनस का अल्फा। ओके, तो C से C कैंसल आउट, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ओके, तो मेरे पास जो Ka हो गया, तो Ka इज इक्वल टू, so my this Ka would be equal to C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। अगर कोई देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि कितना वो प्रोडक्ट बना। अब कोई बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है, बहुत ही ज्यादा वीक एसिड, तो वो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिल्कुल शून्य के बराबर होगा, बहुत ही कम। सो फॉर अ वेरी वीक एसिड, अगर कोई बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है मेरे पास, तो उसके लिए अल्फा तो बहुत ही कम होगा। तो अगर बहुत ही कम होगा अल्फा उसका, तो इसका मतलब वी कैन नेग्लेक्ट दैट, तो इस अल्फा को मैं नेग्लेक्ट कर सकता हूँ। तो फिर मेरे पास वो के क्या बन जाएगा, फ्रॉम द डिनोमिनेटर ऑलवेज, तो डिनोमिनेटर से करते हैं 1 माइनस अल्फा, तो 0 हो गया, तो 1 बचा नीचे, और नीचे 1 तो हमेशा होता ही है हर किसी के, तो ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर।
तो इसका मतलब अगर हमारे पास कोई बहुत ही ज्यादा वीक एसिड होता है तो उसके लिए जो के आता है, ठीक है, ये 1 से बहुत कम होगा। तो इसलिए के क्या बन जाएगा मेरे पास, सी अल्फा स्क्वायर, वाई, बिकॉज वी हैव नेग्लेक्टेड द अल्फा फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ओके, दिस इज वेरी सिंपल। तो अब जब मेरे पास के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर आ गया, तो अल्फा मेरे पास एक तरह से क्या आ जाएगा, आयनाइजेशन कांस्टेंट बाय सी अंडर रूट, राइट। सो अंडर रूट के बाई सी हो जाएगा। और हमें पता ही है जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन लीटर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर। तो वॉल्यूम तो हम नीचे लिखते हैं, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है, तो वो वी भी ऊपर हो जाएगा। कैसे, मैं दिखा देता हूँ एक बार। सो माई के ए केम आउट टू बी सी अल्फा स्क्वायर। सो माई के वॉज सी अल्फा स्क्वायर। ओके, तो अब अगर मेरे पास ये के जो है विच इज यूजुअली सी अल्फा स्क्वायर। ओके, सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द अल्फा हियर, सो माय अल्फा वुड बी के डिवाइड बाई सी अंडर रूट, राइट। तो ये मेरे पास है अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू रूट में के बाई सी। बट एज वी ऑलरेडी नो दैट इन द मोलैरिटी, C, molarity means what, concentration. So concentration is inversely proportional to volume. Why? Because molarity is equal to number of moles of solid present in 1 liter solution. So it means it is inversely proportional to the volume. So and number of moles would be constant. So it means अब जो C मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, तो जब मैं C की जगह पे 1 बाई वी लिखूंगा, तो इट मीन्स ये 1 बाई वी भी ऊपर आ जाएगा। तो इट मीन्स जो अल्फा होगा दैट इज इक्वल टू रूट के ए इंटू में वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू द ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I mean you can say degree of ionization is inversely proportional to under root V, inversely proportional to under root C and directly proportional to V. So we can say for weak electrolyte, तो ऑसवर्ल्ड ने हमें यही बताया कि अगर आपके पास कोई भी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी, क्योंकि के तो कांस्टेंट है, एंड अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये अल्फा और इनवर्सली में फर्क देख लेना, एक जैसा लग रहा है, तो ये अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट सी। ओके, तो ये स्टेटमेंट वी हैव टू यूज इट इन ऑसवाल्ड डायलेशन लॉ। सो बहुत इजी है, ठीक है, बहुत सिंपल भी है। तो इसी के ऊपर कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो देखो, अभी तो ये हमने निकाला है डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है, उसे हम डिसोसिएशन और आयनाइजेशन भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर मान लो आपसे एसिड और बेस का भी पूछे वो, तो ये तो हुआ हमारे पास ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। अब आते हैं हम आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस के लिए। तो अगर मुझे एसिड और बेस के लिए निकालना है, तो सपोज, तो अगर मैं डिसोसिएशन यानी आयनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, तो वी नो दैट कि मेरे पास एक एसिड है विच इज इक्वल टू एच ए, और अगर मैंने उसे एक्वस सॉल्यूशन में डाल दिया है, मतलब एक्वस मतलब वाटर के अंदर डाल दिया है, डेट वुड बी इन इक्विलिब्रियम विद एच प्लस एंड ए माइनस। ओके, तो अगर अब मैं यहाँ का के ए निकालूंगा, सो माई के ए वुड बी इक्वल टू, प्रोडक्ट है मेरे पास ऊपर एच प्लस ए माइनस डिवाइडेड बाय, और नीचे मेरे पास क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट विच इज इक्वल टू एच ए। क्योंकि जो वाटर है एक्वस वो इस साइड चला गया होगा, तभी तो ये के बना है। अगर मेरे पास के होता तो मैं इधर H2 लिखता, लेकिन वो H2 ऑलरेडी यहाँ पे जा रखा है, तभी तो ये मैंने के लिखा है। इट मीन्स इट इज इक्वल टू डिसोसिएशन कांस्टेंट, और यू कैन से आयनाइजेशन कांस्टेंट। तो ये किसके लिए हुआ मेरे पास, दिस इज फॉर एसिड
ऐसे अगर मुझे बेस के लिए भी निकालना होगा तो बेस का क्या फॉर्मूला होता है, बी ओ एच, कोई भी हो, ठीक है। ये ए का मतलब यहाँ पे एसिड था, यहाँ पे बी का मतलब ये बेस है। ए के पास एच होता है, बी के पास ओ एच होता है, सबको पता है ये बात। तो एक्व अभी मेरे पास दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम विद बी प्लस ओ एच माइनस एक्वस, ओके। तो if I want to find out Kb here, so product divided by reactant, OH minus divided by, ये मेरे पास हो जाएगा BOH। अच्छा मुझे मल्टीप्लाई एक्वस भी लिखना था, एक्वस का मतलब वाटर, तो वो वाटर मैं ऑलरेडी उधर लेके जा चुका हूँ, तभी तो ये के भी बना है, वरना तो सिर्फ के होता है ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लेकिन ये इस टाइम आयनाइजेशन कांस्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम इनटू H2O, तभी तो वो बनता है आयनाइजेशन कांस्टेंट, जिसको हम डिसोसिएशन कांस्टेंट बोलते हैं, ओके। तो ये इस तरीके से मेरे पास एसिड और बेस का भी हो जाएगा, ओके, बहुत सिंपल। तो ये इस तरीके से डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहीं पर ये क्वेश्चन आता है कि मान लो, एक्चुअली में आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है एच प्लस की, ठीक है, पता नहीं कितनी है। आपको एक एस सी एन दे रखा है, सपोज करो। तो अगर आपको एक एस सी एन दे रखा है ये, और इसकी जो मोलैरिटी आपको दे रखी है, मतलब मोलैरिटी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, वो आपको 0.2 मोलर दे रखी है एस सी एन की, ठीक है। तो अब हमने उसे वाटर के अंदर डाला है, तो वो आपसे बोल रहा है कि आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दे रखा है, और निकालना क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस निकालना है। तो ये आपको दे रखा है इतनी मोलैरिटी, आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, what would be the concentration of that H plus, and dissociation constant which is, क्योंकि ये एसिड होता है तो डिसोसिएशन की वैल्यू आपको दे रखी है 4.9 into 10 की पावर minus 10, okay, so that is your dissociation constant value. So now if I want to find out the value of dissociation constant, I mean the concentration of H plus, as Ka value is given to you. So firstly, of course, we have to write the reaction first. Okay, so SCN and water, SCN in water, it is in equilibrium, and it is giving you the, because of the ionization, it is going to give you H plus and Cn minus, right? Initially, तो इनिशियली हमारे पास क्या होता है, इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू 0.2 मोलर, एक्वस को तो हटा ही दो, तो इनिशियली तो ये जीरो ही रहेगा। बट आफ्टर डिसोसिएशन इन इक्विलिब्रियम, फाइनल अगर कॉन्सेंट्रेशन देखी जाएगी तो वो कितना हो जाएगा, कुछ ना कुछ इससे यहाँ से गया हुआ। देखो जब एक एच सी एन में से एक एच प्लस और एक सी एन निकला है, तो ऑफकोर्स फ्रॉम दी 0.2, इफ वी आर subtracting some alpha, so of course this alpha is going to that side, right, अल्फा अल्फा। तो अब अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, देखो अभी तो हमें पहले से ही दे रखा था 0.2, तो करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना भाई। अभी तो मैं डायरेक्टली 0.2 दे रखा था, अगर नहीं दिया होता तो हम 1 लेते, तो फिर मैं 0.2 से मल्टीप्लाई करता, लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन उसने हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए हम लेके चल रहे हैं। तो अब ये मेरे पास क्या हो जाएगा फिर, सो के ए वुड बी इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द लॉ, डिवाइड बाय एस सी एन। एच प्लस कितना दे रखा है हमको, अल्फा। कुछ लोग इसको एक्स मान के भी चलते हैं, क्योंकि कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर हम तो सी अल्फा लेते हैं ना, तो तुम एक्स मान के भी कर सकते हो, एक्चुअली वो सी अल्फा को ही टोटल हमने मान लिया है अल्फा, ठीक है। वो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन जो एच प्लस का, वो ही हमने अल्फा मान लिया है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अल्फा अल्फा, और ये मेरे पास क्या है 0.2 माइनस का अल्फा, ओके। तो अब अब अगर मान लो, सबको पता है कि एस जो होता है वो वीक होता है, तो अगर एस बहुत ही ज्यादा वीक होता है तो क्या इसे डिनोमिनेटर से हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एस इज वेरी वीक एसिड, so that's why we are going to get alpha square divided by 0.2, right? तो अब मेरे पास ये क्या बन जाएगा, and k is already given to you, so k is how much, k is 4.9, it is given to you here, तो it means that is equal to 4.9 into 10 की पावर minus 10, तो it means अब यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेशन करनी पड़ेगी,
तो अल्फा अंडर रूट ये 0.2 इंटू देखो वो तो नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, एक्स का मतलब कह सकते हैं अल्फा। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 0.2। इसको सॉल्व करेंगे, ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू गेट दी वैल्यू हियर। ओके, तो इस तरीके से हम ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। तो अंडर रूट है सिंपल, पॉइंट को हटाएंगे तो 10⁻⁻12 हो जाएगा, 10⁻12 से रूट हटाएंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। बस अब फिर हमें क्या करना है, 4.9 इंटू ये हो जाएगा 4.9 इंटू 2, तो 49 इंटू 98 हो जाएगा। 98 का अंडर रूट कितना होता है मेरे पास, एक तरह से देखा जाए, देखो 10 का 100 होता है, तो ये अराउंड कितना आ जाना चाहिए, 9.9 समथिंग आ जाना चाहिए ना, क्योंकि 98 हो गया। तो ये हो जाना चाहिए मेरे पास 9.9 इंटू 10⁻6 मोलर, क्योंकि वो 100 हो गया ना एक तरह से। तो बस सिंपल है। तो इसका मतलब जो मेरे पास अल्फा था, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी थी, तो H प्लस की अल्फा थी, तो अल्फा की वैल्यू निकल तो गई। सिंपल मैथमेटिक्स। ओके, तो इस टाइप से भी, वैसे भी वहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन होते हैं नीट और जेई के अंदर, तो वहाँ पे अगर हमें अप्रोक्सी पता लग गया तो भी हमें पता लग जाएगा। इतना कोई क्लोज क्लोज वो आपको ऑप्शन नहीं देगा कि आपको एग्जैक्ट निकालना ही होगा, ठीक है। तो वो हमें इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ओके, दिस इज वेरी सिंपल, आई होप। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि ये जो मेरे पास के है, ओके, वेयर आई प्रूव दैट, यस, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया के ए के। इट मीन्स कैन आई से माई के ए इज इक्वल टू अल्फा। सिंपल है, अंडर रूट वाला, अंडर रूट के भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में ना हमारे पास जो टॉपिक आने वाला है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेंथ का, रिलेटिव स्ट्रेंथ हमारे पास है। मान लो हमारे पास दो एसिड हैं, वो इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब एक तरह से देखा जाए तो हम बोल सकते हैं मोलैरिटी, मोलर सोल्यूशन इक्वल बिल्कुल है, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेंथ देखता हूँ, तो हमेशा याद रखना स्ट्रेंथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है के, मतलब वही अंडर रूट में के। और के किसके बराबर होगा, अल्फा के, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया है अल्फा इज इक्वल टू रूट के वी। तो यहाँ पे हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ भी कोई पूछता है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड, तो टू एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में कभी भी वो बात करेगा, ठीक है। ऑफ कोर्स वो क्या है हमारे पास, इक्विमोलर। तो वो इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ, तो मेरे पास जो स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha1 मतलब पहले वाले एसिड का, डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ एसिड Ha2। तो ये मेरे पास दो एसिड है। सो जो स्ट्रेंथ होती है पहले वाले की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, सो इट वुड बी इक्वल टू अंडर रूट Ka1 divided by Ka2, and as I told you Ka is directly proportional to alpha, so that Ka is directly proportional to alpha 1 and Ka2 is directly proportional to the alpha 2, so that is the relative strength of the two acids। ओके, सेम इसी तरीके से मान लो अगर वो एसिड ना बोल के अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू बेस पूछ लेता, तो वो भी सेम होता। सब कुछ डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो कितना इजी भी है। अगर मैं बात करता हूँ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ टू बेसिस, ऑफ कोर्स इक्विमोलर की बात चल रही है। फॉर इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन, वी कैन से strength of base BOH1 1 and the strength of base BOH2, so that is completely equal to the KB1 divided by KB2. It means we can say alpha 1 by alpha 2, as it is directly related. Simple.
तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। अब मान लो अगर मेरे पास एक पॉलीप्रोटिक एसिड है, तो जैसे मान लो H2SO4 है, तो H2SO4 पहले तो H प्लस देता है, तो उसके लिए मान लो डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 हो गया। फिर वो दोबारा से HSO4 फिर से टूटता है, तो वो H प्लस में टूटेगा फिर से, तो SO4 बन जाएगा, तो वो KO2 हो गया। तो इस पूरे का प्रोडक्ट ही हमारे पास क्या बनता है, वो कंप्लीट डिसोसिएशन कांस्टेंट बनता है। मैंने क्या बोला, मान लो कि अगर मेरे पास एक H2SO4 है, पहला वाला, तो H2SO4 है, तो इट मीन्स इट इज गोइंग टू गिव राइज H प्लस एंड HSO4 माइनस। तो ये मेरे पास है Ka1। नाउ अब ये HSO4 फर्दर डिसोशिएट होगा, तो इट वुड गिव यू दी वन मोर H प्लस एंड इट बिकम SO4 2 माइनस। तो मान लो ये मेरे पास है Ka2, तो ये ऊपर वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट 1, नीचे वाला डिसोसिएशन कांस्टेंट 2। अब H2SO4 अगर डायरेक्टली ही 2H प्लस और SO4 2 माइनस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसके लिए जो मेरे पास टोटल Ka होगा, दैट वुड बी इक्वल टू Ka1 इंटू में Ka2 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और सो फोर्थ एंड सो ऑन। ये बहुत सिंपल है। तो इसी तरीके से आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे, जितनी बार में वो H प्लस हमें देता जाएगा। तो इस टाइप की क्वेश्चन और इस टाइप का कॉन्सेप्ट भी हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने को मिलता है, एंड आई गेस हम इसे कर भी सकते हैं बहुत इजीली है। ठीक है, तो अब ये तो हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट को लेकर हुआ है। ठीक है, तो यहीं पर ही हमारे पास कुछ फैक्टर्स भी होते हैं जो कि एक एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूँ, और ये वाला पोर्शन हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, जब भी हम पी ब्लॉक या एस ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं, तो ये एसिड वाला टॉपिक यहाँ पे यूज होता है। तो अब अगर मैं बात करता हूँ, मान लो ये स्ट्रेंथ के बारे में, तो हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देयर आर मेनी फैक्टर which can affect the strength of acid. So factors affecting strength of acid. तो सबसे पहले मेरे पास आता है, मान लो मेरे पास कोई अगर सेम ग्रुप्स की मैं बात करता हूँ, मेरे पास कुछ एलिमेंट्स है जो कि सेम ग्रुप में है। ठीक है, मेरे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ऐसा देखा गया है कि जब जब मेरे पास एटम का साइज बढ़ता है, तो ऑफ कोर्स बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ जाएगी, और बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, क्योंकि साइज जब बड़ा हो गया होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो जब बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो वो H प्लस आयन को जल्दी लूज कर देगा। और जब वो H प्लस आयन को जल्दी लूज करेगा, तो ऑफकोर्स एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ये नीट जेई के अंदर काफी आता है। जैसे मान लो मेरे पास है HF, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है हेलोजन वाले ग्रुप में, एक है HCl, एक है HBr, और एक होता है मेरे पास HI। तो क्वेश्चन आता है कि बताओ इनमें से सबसे ज्यादा कौन एसिडिक होगा। तो ऑफ कोर्स हमें क्या पता है कि जितना ज्यादा साइज बढ़ेगा, साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस, तो अगर किसी भी एटम का साइज अगर इंक्रीज होगा, तो ऑफ कोर्स उसकी बॉन्ड लेंथ अपने आप में इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज करती है, और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा हो जाएगा, एक बहुत छोटा। तो उस तरीके से क्या होता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो इट मीन्स बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, वो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ मतलब बोल सकते हैं कि जो अच्छी खासी बॉन्डिंग होती है, अब वो अच्छा खासा बॉन्ड नहीं रह पाएगा। और अगर अच्छा खासा बॉन्ड नहीं रह पाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ ही कम हो जाएगी, तो ऑफ कोर्स वो जल्दी जल्दी से टूट जाएगा। और जल्दी से टूट जाएगा तो वो H प्लस जल्दी से दे देगा। तो टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन इंक्रीजेस, तो वो जल्दी से H प्लस आयन भी देगा। टू लूज H प्लस आयन इंक्रीजेस। और जो भी हमें H प्लस आयन जल्दी से देता है, तो उसकी एसिडिटी भी इंक्रीज हो जाती है। तो हम पढ़ाई है नहीं इसमें, मोर H प्लस मोर इज द एसिडिटी। तो एसिडिक कैरेक्टर मेरा इंक्रीज कर जाता है। तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, तो इसका मतलब देखो सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका है, HI का है। HI का, तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो वो जल्दी से H प्लस दे देगा। तो इट मीन्स देयर एसिडिक कैरेक्टर वुड बी HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr एंड फाइनली HI।
तो इस तरीके से मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, क्योंकि ऐसे करने में बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, एसिडिक कैरेक्टर। तो ये तो बात हुई मेरे पास सेम ग्रुप की। अब मेरे पास आते हैं कि अगर हम सेम पीरियड की बात करते हैं, जैसे अगर मैं 13 ग्रुप लेता हूँ, फिर 14, मान लो 14 ग्रुप लिया मैंने कार्बन, 15 के अंदर नाइट्रोजन होता है, फिर 16 के अंदर ऑक्सीजन होता है, और 17 में फ्लोरीन होता है, राइट। जैसे हम ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं ना, जैसे मेरे पास 14 ग्रुप होता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ठीक है। और इस तरीके से मेरे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये 15 होता है। 16 का कौन सा होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोरियम, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये 17 होता है। तो हम अभी हमने ग्रुप की बात करी है, अब हम जो ये बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं पीरियड की। तो अगर मैं पीरियड की बात करूंगा तो पीरियड के अंदर क्या होगा, ठीक इसका उल्टा होगा, ठीक है। तो अगर एक्चुअली साइज पे डिपेंड नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिपेंड कर रहा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो पोलैरिटी बढ़ेगी, और अगर पोलैरिटी जितनी ज्यादा बढ़ती है तो इसका मतलब उतना ही ज्यादा मेरे पास एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो सबसे ज्यादा H प्लस भी बनाएगा। अगर फ्लोरीन नेगेटिव है तो वो H प्लस बनाएगा, H प्लस बनाएगा तो वो इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा, क्योंकि एसिड ही H प्लस देते हैं। तो इसीलिए पीरियड के अंदर हम साइज को नहीं देखते बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे। ओके। तो यहाँ पे अब जो मेरे पास आ रहा है वो है कि अगर मेरे पास, so now I am considering same period, I am moving along the period from left to right। तो इसका मतलब पीरियड के अंदर, एज आई ऑलरेडी सेड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है तो ऑफ कोर्स मेरे पास पोलैरिटी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगी उतना ही ज्यादा कोई कोई भी बॉन्ड पे प्लस और नेगेटिव आता है, तो पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड इंक्रीजेस। और जितना ज्यादा पोलैरिटी इंक्रीज करेगी ऑफ कोर्स तो उतना ही ज्यादा मेरे पास एसिडिक कैरेक्टर आएगा। सो एसिडिटी, और यू कैन से एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो अगर अब मैं बात करता हूँ, मान लो मेरे पास एक CH4 है कार्बन का, एक मेरे पास NH3 है, हाइड्रोजन भी कम होते जाएंगे ऑफ कोर्स, एक मेरे पास H2 है, इसको OH2 भी बोल देते हैं कुछ लोग, और ये HF है। तो हम पीरियड के अलोंग जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑफ कोर्स मेरे पास HF है। सो ऑफ कोर्स ये 17 ग्रुप है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ऑक्सीजन उससे कम होता है। और ये हमने पढ़ भी रखा है, फोन Cl, राइट। तो फोन Cl में F को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और फिर Cl। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे बढ़ती है, तो ऑफ कोर्स जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये भी, पीरियड के अंदर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, देखो अब ना, जब भी हम 11th 12th में पढ़ते हैं तो 11th 12th के अंदर हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, जब भी हम ऐसे इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, तो वहां पे हमारे पास कुछ क्या आते हैं, ऑक्सो एसिड्स आते हैं। तो अब उन ऑक्सो एसिड को अगर हम सेम, जैसे एक ही एलिमेंट के बहुत सारे ऑक्सो एसिड बन सकते हैं, जैसे मेरे पास HClO होता है, HClO2 होता है, HClO3 होता है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे जितने भी ग्रुप हैं उनमें मोस्टली के हम ऑक्सो एसिड पढ़ते हैं, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सो एसिड का मतलब और उसमें ऑक्सो एसिड में H और O होते ही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक तीसरा थोड़ा अलग पॉइंट है, लेकिन ये हर किसी के नहीं होते हैं, तो इस चीज का भी हमें ध्यान रख। तो अगर मैं ऑक्सो एसिड्स की बात करता हूँ, फॉर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सेम एलिमेंट, तो ऐसा देखा है कि अगर मेरे पास एक है HClO, एक है मेरे पास HClO2, एक है मेरे पास HClO3, एंड द लास्ट आई हैव HClO4। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैं ऐसा ही टोल्ड कि जितने ज्यादा मेरे पास होंगे फॉर द सेम एलिमेंट, तो जितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन होंगे, मोर द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, जितने ज्यादा ऑक्सीजन होंगे उतने ही ज्यादा मेरे पास एसिडिक कैरेक्टर होगा। So more is the acidic character. So it means we can say HClO4
have more acidic character than HClO, HClO2 and HClO3. सिंपल। तो ये था मेरे पास पूरा का पूरा अपने आप में एक एसिडिक कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो आई होप ये सब बच्चों को याद रहेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि एक स्टेटमेंट होती है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो बेस बनता है ना, कॉन्जुगेट बेस, वो हमेशा वीक होता है। और अगर मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे पास मान लो स्ट्रॉन्ग अगर बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है वो भी हमेशा वीक होता है। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे जैसे हमने पढ़ी थी, सारी थ्योरीज पढ़ी थी, तो ये बातें याद रखने वाली हैं। अगर मेरे पास कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर वो उधर जाके क्या बनता था, तो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है तो उधर आके वो बनता था कॉन्जुगेट बेस। तो अगर स्ट्रॉन्गर एसिड का अगर वो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है, तो वो मेरे को क्या देगा, वीक कॉन्जुगेट बेस। तो ये चीज हमें याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा वीक कॉन्जुगेट बेस देता है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, इसका उल्टा, अगर एक मेरे पास स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस का हमेशा क्या बनेगा, वीक कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। तो ये चीजें हमें याद रखनी है काफी, और ये काफी इंपॉर्टेंट भी होती हैं। ठीक है, तो और एक और चीज, जैसे हमने ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ पढ़ा है, तो ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ में हमने सिर्फ वीक लिया था। क्यों हमने वीक ही क्यों लिया, क्योंकि ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ कभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता ही नहीं है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो 100% आयनाइजेशन दे देता है, आई मीन 100% रिजल्ट दे देता है, तो डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट ही नहीं है। जैसे वीक है, वीक में मान लो थोड़ा सा दिया, पानी डालते हैं तो वो और देता है, लेकिन जो टॉपर बच्चा होता है उसको रिजल्ट आता ही है। तो इसका मतलब जो स्ट्रांग होता है वो तो पूरा पूरा प्रोडक्ट दे ही देगा, तो फिर उसमें हम निकाल ही क्या रहे हैं, तो उसमें क्या ही इक्विलिब्रियम, जो सारा का सारा प्रोडक्ट ही आ गया तो। ठीक है, तो ऑसवाल्ड डायलेशन लॉ हमेशा वीक के लिए वैलिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड का हमेशा कॉन्जुगेट बेस जो होता है वो वीक होता है। तो ये सब चीजें हमें हमेशा याद रखनी है। तो ठीक है, तो आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आया होगा। तो यही सब चीजें हैं हमारे पास। ठीक है, तो आज के इस YouTube लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी का पोर्शन हम करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन था पूरा का पूरा एसिड और बेस से रिलेटेड पोर्शन, जो कि एग्जाम में काफी आता है। आई होप सबको समझ में आ चुका होगा। बाकी अब हम नेक्स्ट करेंगे अपना दूसरा पोर्शन। सो बाय बाय, टेक केयर।